Friends, welcome to our YouTube channel, that is Tita Classes, and welcome to our English lecture series. And today we'll cover the topic of synonyms and antonyms. This is our lecture number 7, and in this topic we'll cover some of the words that are very important from the point of view as well, and which are also used in our day-to-day communication language. So before moving further, I want all of you to please subscribe our channel, that is Trinza Classes, and we'll first go with the definition of what are synonyms and antonyms. हम सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ synonyms ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ opposite word ਹੈ ਨਾ, synonym ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ word ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ meaning ਸੀ। ਬਸ for the purpose of ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ definition ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ definition ਕੀ ਹੈ, and then we'll move on further ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦਿਸ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲ ਕਵਰ ਆਲ ਦਿਸ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਵਿਲ ਇਨ ਦੀ ਟੂਡੇਜ਼ lecture. So moving on further, I wanted all of you to know the definition of antonyms. Antonyms ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ word ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ meaning opposite होवे, so they have the opposite meaning of they have the meaning that is opposite to the meaning of the other word. It is very simple, all of you know that. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ they are called as opposite words. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ opposite words ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। so it is all about what antonyms are. Move on further, synonyms ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐਂਟੋਨਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਨੋਨਿਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੋਨੀਮ ਨਾਲ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ word ही पता। तो फर्स्ट अपना जिहड़ा word है that is present. present का जिहड़ा opposite word है ओदा जिहड़ा word है that is absent, and present का जिहड़ा similar word है ਜਾਂ कह देने पर same word है contemporary। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ sentences ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਆ in today's contemporary world or in today's present world। तो आप ਇਹ ਜਿਹੇ word यूज करते हैं कि अपने sentences ਦੇ ਵਿੱਚ अपने essays ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो present ਦਾ ਜਿਹੜਾ opposite word है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ meaning है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ word है that is absent, ਤੇ present ਦਾ ਜਿਹੜਾ synonym है that is continuous। so we'll move on to the next word that is scarce। scarce मतलब बहुत ही limited ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ quantity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ठीक है, बहुत ही घट मात्रा दे विच कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु होनी, ठीक है। स्कार्स का मतलब बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। इसका जिहड़ा सिनोनिम होएगा रेयर, रेयर भी कहने बहुत घट। एक ब्लड ग्रुप ना बहुत ही रेयर है, जिवें ओ नैगेटिव ब्लड ग्रुप हुंदा है वो बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है। सो ये बहुत घट मात्रा विच पाया जाता है। सो इहदा जिहड़ा अपने सिनोनिम है रेयर भी कह सकते हैं, लिमिटेड भी कह सकते हैं। सो बोथ आर करैक्ट। इसका जिहड़ा एंटोनियम है मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, we'll call that word as abundant। we'll call that word as abundant। तो scarce ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਹੈ abundant, synonym ਹੈ rare और decline। decline ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब मीनिंग है मतलब ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ठीक है, मना करना ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ सिनोनियम है डिनाई। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ opposite word है ਜਾਂ एंटोनियम है that is accept। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ accept। ਆਪਾਂ inaccurate ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। we'll see this word first that is deny। deny ਦਾ सिनोनियम ਜਿਹੜਾ है और disagree भी हो सकता है। that is डिक्लाइन का मतलब डिसएग्री भी हो सकता है, डिनाई का मतलब
डिक्लाइन भी हो सकता है। सो नाई, डिक्लाइन, डिसएग्री, दे ऑल मीन्स सेम, मतलब उन्हां दा मतलब सेम है। इहदा जिहड़ा एंटोनियम होएगा दैट इज कन्फर्म। ये मतलब एक्सेप्ट करना जी किसी चीज़ ਨੂੰ कन्फर्मेशन देनी, ठीक है, ਤਾਂ उसकी इंटरव्यू की कन्फर्मेशन ਜਾਂ डॉक्टर ਕੋਲੇ अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन देनी, ਤਾਂ इसका ਜਿਹੜਾ एंटोनियम होएगा दैट इज कन्फर्म। सो कन्फर्म, accept, both are, they both have the same meaning, have the same meaning, ठीक है। ਆਪਾਂ चलते हैं इनएक्यूरेट पे। इनएक्यूरेट पता है गलत होना, ठीक है। एक्यूरेट मतलब सही, इनएक्यूरेट मतलब द सिनोनियम इनकरेक्ट। तो एंटोनियम इसका की हो सकता है करेक्ट। दिस वन इज वेरी सिंपल। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एडवांटेज। एडवांटेज आप कह दें इस चीज़ के या इस टॉपिक दे या इस कंप्यूटर के जो मोबाइल फोन के बहुत ही एडवांटेजेस भी ने ते बहुत डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। तो एडवांटेज का ऑपोजिट की होएगा डिसएडवांटेज। एडवांटेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਰਿਟ ਦਾ मतलब एडवांटेज भी ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਮੈਰਿਟ है ਉਹਦਾ मतलब डिसएडवांटेज। बस ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ आ सकता है, राइट द मेरिट्स और डिसमेरिट और डिमेरिट्स of networking, of communication channels or anything like that related to your subject, okay। so the next word is none। none मतलब कुछ भी नहीं, खाली, blank, ठीक है। अब कह देने अपने ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आंदे ने none of the above, मतलब कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं हैगा, कोई आंसर नहीं मिल रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, that is called as none। is सिमिलर वर्ड की होएगा एम्प्टी, ब्लैंक भी कह सकते हैं। ब्लैंक मतलब की हो गया खाली, ठीक है। ते इसका जो ऑपोजिट वर्ड की होएगा ऑल, तो सब कुछ सारा। आई होप इट बहुत ईजी है, यू गाइज मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज अबव। अबव मतलब ऊपर, ऑपोजिट जो वर्ड है दैट इज डाउन, नीचे। अबव ਨੂੰ ਆਪਾਂ कह देने अप, ठीक है। अबव का जो ऑपोजिट वर्ड है आप अबव ਨੂੰ ਕੀ कह देने ऑपोजिट वर्ड ਨੂੰ बिलो। that thing is above the table or that thing is below the table, okay। so we'll use these words in sentences, okay। so below, down, underneath, so these kind of words have the similar meaning, ठीक है। इन्होंने मीनिंग सेम है। above, up, इन्होंने मीनिंग, okay। next set of words is okay। next set of words की कहता है फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेट, मतलब उस बंदे की सोचनी बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही डायरैक्ट है, बहुत ही अलाइंड सोचता है वो बंदा, है ना। तो बहुत कन्फ्यूज नहीं हैगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचता, आप कह दें है ना। तो इसका जो सिनोनियम होएगा गाइस, दिस इज एंटोनियम, ये सिनोनियम, ठीक है, और सेम पैटर्न। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है अलाइंड, आप करेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड इसका जो ऑपोजिट वर्ड है, कोई चीज़ स्ट्रेट जा रही है तो ऑपोजिट वर्ड की होगा जिगजैग। क्रूग्ड मतलब, क्रूग्ड भी कह देते हैं, क्रूग्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ओके। तो स्ट्रेट का जो ऑपोजिट वर्ड होगा जिगजैग और क्रूग्ड। फॉरवर्ड थोड़ा पता उसकी थिंकिंग बहुत फॉरवर्ड है, ਉਹਦਾ ऑपोजिट वर्ड की हो जाएगा बैकवर्ड। फॉरवर्ड का जो सिमिलर वर्ड और सिनोनियम है वो की होएगा एडवांस्ड। फॉरवर्ड और एडवांस्ड have the similar meaning। so next word is descent। descent मतलब नीचे जाना या डिक्रीज होना, ठीक है।
शेयर्स नीचे चले गए हैं, डिसेंड हो गए हैं, ठीक है। शेयर मार्केट के शेयर्स नहीं होंगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ग्राफ से गो डाउन, ठीक है ना, डिसेंड हो गए हैं, नीचे चले गए हैं। तो डिसेंड होना, डिक्रीज होना का मतलब सेम है। ऑपोजिट वर्ड की होगा असेंड होना या, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टुगेदर। टुगेदर मतलब एकजुट होना, इकट्ठे रहना, ठीक है। तो टुगेदर मतलब यूनाइटेड। द ऑपोजिट वर्ड की होगा दे आर सेपरेटेड। आप कह दें ना इन आर day to day language we use this word, they both are separated, we use such kind of words। तो separated मतलब कि दोनों ਵੱਖ ने एक दूजे तो, एक फैमिली अपने सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स तो सेपरेटेड है। तो दिस इज एंटोनियम और ऑफ। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कॉवर्डली, मतलब कि जेड़ा ब्रेव ना हो, ठीक है। मतलब जेड़ा कि बहुत ही कह दिंदे आ बहादुर नहीं है, जमा भी बहादुर नहीं है उस बंदे दे विच। बहुत ही ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਸਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ऑफ यू नो लैंग्वेज और वर्ड्स। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, बहुत कावर्ड है, पर्सन इज वेरी कावर्ड, मतलब झूठ बोलदा आ, ओके। और की कहंदा आ चापलूसी करदा आ, यू कैन से दैट। और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਠੀਕ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ है। और the most appropriate word that we can use for coward, that is the ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ है, ठीक है। ਕੀ है, ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਕ। ਵੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੌਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। राम और राहुल इज वेरी मीक, राहुल इज वेरी मीक मतलब वो बहुत धोखेबाज है, जो ਇਹਦਾ मतलब चंगा बंदा नहीं है। तो इज द ऑपोजिट की होगा करेजियस, बहुत बहादुर है, ठीक है। दैट पर्सन इज वेरी ब्रेव, क्या आप ब्रेव भी लिख सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वर्ड दैट इज ओपेक। ओपेक मतलब तुम देखा होगा ना, व्हाट आर द ओपेक सब्सटेंसेस। वी हैव थ्री टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, science you must have know that transparent, translucent and opaque। I know all these three terms, but आहा देखना है कि ट्रांसलूसेंट आप किसमें कहने हैं, ठीक है। डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ओपेक ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਏ ਪਰਸਨ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਪਰਸਨ ਦੇਖ सकता, ठीक है। तो है ये ओपेक है, एक चीज ओपेक, तो आहा ओपेक है, ठीक है। वुडन ब्लॉक इज ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब इस वुडन ब्लॉक की जगह जे कोई प्लास्टिक की शीट लगी होंगी है ना, कि अपने प्लास्टिक की ए बंदा बी ਨੂੰ देख सकता सी, बी देख सकता, ट्रांसपेरेंट। ओपेक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਰੀ, ਬਲਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਲਰਡ। ਬਲਰਡ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ मतलब ओपेक ਤੇ ਬਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ऑलमोस्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वर्ड दैट इज ग्रेसफुल। Sahil is very graceful, Shweta is very graceful, okay, Sita is very graceful, we can say that। Simran is very graceful। graceful मतलब ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਹੋਏਗਾ that is beautiful। opposite word ਕੀ ਹੋਏਗਾ, inelegant, opposite word है in। नेक्स्ट वर्ड है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करना, ठीक है। वॉलंटरी है
अपने ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, this is voluntary for you, voluntary for some people. Okay, let's take an example. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ optional ਹੈ, it is optional. Okay, voluntary ਮਤਲਬ optional, and ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ एंटोनियम है और ऑपोजिट वर्ड है दैट इज कंपल्सरी। मतलब ये काम तुसी करना ही करना है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अति जरूरी है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बाइंडिंग है, ਕੰਮ करना ही। कंपल्सरी ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪਾਂ वर्ड है यूज कर सकते हैं ਜਿਹੜਾ आजकल यूज ਹੁੰਦਾ है दैट मैंडेटरी। कंपल्सरी एंड मैंडेटरी दे हैव द सेम मीनिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड है विंडी। विंडी मतलब कोई चीज़ रिच होना या रिस्क ते होना, ठीक है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेम वर्ड है डेंजर, ਤੇ ਇਹਦਾ ऑपोजिट वर्ड है शेल्टर्ड या प्रोटेक्टेड। कोई चीज़ सेफ होना, प्रोटेक्शन के अंडर होना या शेल्टर्ड होना। जे आप अपने घर दे विच बैठे हाँ, ठीक है, मतलब शेल्टर्ड हाँ, आप मतलब प्रोटेक्टेड हाँ, ठीक है। तो डेंजर का ऑपोजिट वर्ड की होगा शेल्टर्ड। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज डिम। डिम का मतलब दिस लाइट इज वेरी डिम, ठीक है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट सेम वर्ड है दैट इज फेडेड। आप कह दें इस शर्ट का रंग बहुत फेड, दैट इज शर्ट का रंग जो है बहुत ही घट गया है, ओरिजिनल रंग है बहुत ही फेड हो चुका है, डिम हो चुका है। इट टू बी वर्ड डिम। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट वर्ड की हो जाएगा, जी नवी शर्ट है ना उसका कलर बहुत, ठीक है। सो फेडेड का ऑपोजिट राइट। So in the next slide will our last set of words, and that are the first one is contract। सुंगड़ना किसी चीज़ का, ठीक है, सुंगड़ना कहने आप कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जोड़ा सेम मीनिंग है वो है कॉम्पैक्ट, ठीक है। किसी चीज़ का छोटा हो जाना, सुंगड़ जाना, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ਜਿਹੜੇ टमाटर हैं, मेरे दिमाग से एग्जाम्पल आ रहे हैं, टमाटर सुंगड़ जाते हैं लाइक उन्होंने ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਜਮਾ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एग्जाम्पल to clarify and to make understand the meaning of। now इसका कॉन्ट्रैक्ट का ਜਿਹੜਾ सेम मीनिंग हो गया ਉਹਦਾ ਕੀ है वर्ड की है कॉम्पैक्ट है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ऑपोजिट वर्ड है वो की है एक्सपैंड, मतलब फैल जाना, ठीक है। आज इज फैल रही। नाउ दी कोरोना वायरस इज एक्सपेंडिंग, वायरस इज एक्सपेंडिंग by। now this one is very easy। इंटीरियर ਦਾ ऑपोजिट होगा एक्सटीरियर। इंटीरियर आप इनसाइड कह दें, एक्सटीरियर ਨੂੰ आप आउटसाइड कहते हैं, बहुत सिंपल। नाउ दूसरा वर्ड है इनडेफिनिट। कोई चीज़ मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, कह दें इनफिनिटी है ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, जी कोई फिक्सड ही ना हो, उन्होंने आप कह दें इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट का जोड़ा मीनिंग है उसका आप कह दें अनलिमिटेड। the opposite जोड़ा word है that is fixed, or we can say that fit, okay। next one is import। import मतलब कोई चीज़ अपने कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ आ रही है, मतलब एंटर हो रही है, that is import। एक्सपोर्ट का मतलब कोई चीज़ अपने कंट्री तो बाहर जा रही है, आउट, बाहर जा रही है मतलब आउट, that is export। इनकरेज का मतलब हो गया उस बंदे ਨੂੰ प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, या उन्हें सपोर्ट करना। किसी ऑपोजिट का अनसपोर्टिव एंड उसको डिस्करेज करना, डिस्करेज। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज हेल्थ। हेल्दी मतलब बंदा जोड़ा है बहुत फिट फाइन है, द पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ हिज और हर हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थी का जोड़ा
एंटोनियम है दैट इज फिट एंड ਜਿਹੜਾ एंटोनियम है दैट इज इल person is very sick. Okay, now west मतलब this technology is sorry belongs to west. What does this mean? मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ technology west ਨੂੰ that means ਇਹ western technology. western technology का मतलब है modern technology. ठीक है, तो western का ਜਿਹੜਾ meaning हो गया modern. ठीक है, ਜਿਹੜਾ east ਦਾ मतलब हो गया कि modern नहीं है ਜਾਂ कोई ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੋਕੜ है. ठीक है, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ लैंग्वेज कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ बहुत ही outdated है. we can outdated है ਜਿਹੜੀ. now shallow का मतलब बंदा ਜਿਹੜਾ बहुत ही सेल्फिश होवे अपना मतलब करता होवे और ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सेल्फिश. तो ऑपोजिट की होगा सीरियस. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अजार. अजार मतलब फ्री बंदा अजार है या द स्पिरिट इज अजार. नाउ द स्पिरिट इज अजार. फ्री द ऑपोजिट की. नाउ द लास्ट वर्ड इज शेल्टर्ड. ओके, पहला शेल्टर्ड, guarded, shielded. These kind of words these words have the similar meaning as that of इधर जो opposite word है insecure. सेफ नहीं है, अनसेफ है. ठीक है, तो सेफ तो जो एंटोनियम होएगा इनसिक्योर और अनसेफ. with this covered the main words or main synonyms and antonyms. I hope you guys have liked this video, and if you have enjoyed this video, please like it and share it among friends, and please do subscribe our channel. And Ajali was in and will do more of such kind of stuff that is very important for your examination in the future.